So there are around 62 students. So we have a spherically charged sphere, means that is having a positive charge, maybe negative charge. Normally we use to have positive charge, and we are somewhere here where we have to find the potential, and we are coming to this point through infinity, and we want to find what is Vp due to this arrangement of charge. And this is roughly, say this is at a distance r, and it is having a certain radius which is r. So we very well know that when you're sitting outside the sphere or spherical shell, then what is the electric field? That is very simple. E is 1 upon 4 pi epsilon naught q total divided by Small r का square. small r square and r cap, which because it will be in the same direction. So the radial direction hoga means this is somewhere we have a unit vector which is r unit vector, so that will be in the direction of r unit vector. So this is very simple. And सर ये किसका कर रहे हैं हम लोग? हाँ क्या कर रहे ये हैं? वाला हम लोग किसका निकाल ले? Sir, ये आपकी spherical screen shell. visible नहीं है. स्क्रीन तो दिख रही है, स्क्रीन तो विजिबल है. This is we are finding the potential due to spherical charged spherical shell of a radius r. Okay, so Vp जिसका यूजुअल जो फॉर्मूला है which is E dot dl, and you are coming from infinity to point small r, which is the point where P is located with respect to the center of your shell. Clear? So this will be minus infinity. हाँ बोलो. ऊपर r square होगा ना E में. Oh, sorry. Yes, this is r square because we are writing electric field. Potential लिख रहा था. Then we will write q total divided by r square, r unit vector, and we will do the dot product with your dl element. और dl element को क्या लिखेंगे? Small element along which line? We are coming from infinity to the point P, and you are coming radially inward. You are coming radius, so that is your radial line only. So dl can be written as d r, which is again in r unit vector. So dl को हम लिख सकते हैं because हम किस उसमें मूव कर रहे हैं? हम मूव कर रहे हैं रेडियल, इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं ना. हाँ बोलो. सर मैंने 4 बार ज्वाइन कर लिया सर, फिर अब भी विजिबल नहीं है. लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हो क्या? हाँ लैपटॉप से. कहाँ से कैसे बताऊं? आती है सर कभी कभी मोबाइल में. हाँ, तो आप लोग दोबारा स्क्रीन शेयर कर दीजिए तो आ जाएगी. तो मेरे को करना पड़ेगा. ठीक है, एक मैं कर देता हूँ. आप देख लो एक बार आ रहा है तो. आ जाएगा थोड़ी देर में. So this is q total with minus sign 4 pi epsilon naught and simple integration infinity से r तक जाना है. हमें infinity से r तक आना है. Actually उल्टा हम कह देते हैं, but this is lower limit is infinity and higher upper limit is r. So this is dr divided by r square. Very simple integration. इसके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं. It is giving me 1 by r. So this will be 1 upon 4 pi epsilon naught q total divided by r. चाहो तो इंटीग्रेट करके देख लो. अपर लिमिट विल बी 1 by minus 1 by r and minus 1 by infinity. माइनस साइन आएगा या प्लस आएगा? सर माइनस है. माइनस 1 बाई आर आएगा सर, फिर माइनस माइनस प्लस हो माइनस 1 जाएगा. बाय आर आएगा, माइनस माइनस प्लस एंड में होगा. Because this will be minus 1 माइनस by 1 बाय आर इंफिनिटी टू आर. r to infinity आ गया ना.
So it will be minus 1 by r and minus plus 1 by infinity. This will be minus 1 by r और एक माइनस आने हमारे पास पहले ही बाहर ही था, तो दैट इज माइनस माइनस प्लस. सो दिस इज दिस वन. बड़ी सिंपल तरीके से आ गया बिकॉज सब कुछ सिमेट्रिक है. रेडियली हमारा सारा यूनिट वेक्टर ही था. एक्स वाई जेड का कोई यहाँ पे नॉलेज रखने की जरूरत नहीं थी, कोई एंगुलर वेरिएशन की नॉलेज रखने की जरूरत नहीं थी. दैट वाज वेरी सिंपल. This is your any point which is outside the shell. So this is your potential and the potential will vary according to r. जितना आप दूर रहोगे उतना potential decrease होगा. This is something like outside the shell. वो proportional है r पे, indirectly है, but it is depending upon r. Now this is for the case r greater than sorry r greater than r. For r less than r, again we will follow the similar kind of. अब कोई पॉइंट है जो विद इन द शेल है और अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर यूज करेंगे. इन्फिनिटी से हम r, नाउ दिस r इज, आई विल राइट हियर r which is less than r. इस r का मीनिंग डिवीजन नहीं है, इस r का मीनिंग है we are taking r which is less than r and we are doing d dot dl. Again e and dl का कोई फंक्शन में चेंज नहीं है. e हमारा r यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में ही है, which is something q upon 4 pi epsilon naught 1 upon r square. और dl भी हमारा उसी रेडियल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है because we are moving from infinity and we are moving towards center. बट हमने शेल को क्रॉस कर लिया है, क्रॉस करके हम अंदर आ गए and we are trying to see कि पोटेंशियल क्या है. So when you do this kind of thing, what happens when you cross the shell, the electric field is changing. So you cannot do the integration in a one go. जब आप शेल से बाहर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अलग फंक्शन है, जब शेल के अंदर आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंट फंक्शन है. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द शेल? 1 by 4 pi not q by capital R. Zero, zero. Within the shell it will be zero. तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आ गया. इट मींस वी हैव टू ब्रेक द इंटीग्रेशन. अब हमें इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. एक हम वो पार्ट है जो r स्मॉल r ग्रेटर देन r के लिए फॉलो करेगा और इक्वल टू r तक के लिए फॉलो करेगा. एंड वंस यू क्रॉस दैट लिमिट, व्हेन यू कम इनसाइड द कैपिटल R, देन योर इंटीग्रेशन विल बी हैव अ डिफरेंट आउटकम. ऑब्वियसली वहां पे e जीरो है तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेंट भी जीरो देगा. But whatever, you have to divide into two part. That is, infinity से capital R तक आप आए और E dot dl किया. Then capital R से small r, where small r is less than r, and E dot dl आपने किया. Sorry, माइनस साइन दोनों के साथ है, यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं. ठीक है. This term, ये वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हो बिकॉज दिस इज व्हाट, जो ऊपर का फंक्शन है ना वही है ना, r टू r था, सेम इंटीग्रेंट आएगा. यहाँ पे लिमिट हमारी स्मॉल r नहीं कैपिटल R आ जाएगी. तो दैट विल बी 1 upon 4 pi epsilon naught q total divided by capital R minus, what about this term? For this integration E is 0. That will be 0. So it means 1 upon 4 pi epsilon naught q total divided by r. So this is your potential at any r which is less than r for a spherical shell. So that is not 0. Although Yes, the sir. electric field is 0. Although the electric field is 0. 0. ठीक है, इलेक्ट्रिक Then फील्ड 0 है. explain कि how we have divided that two things, two integrations. कैसे divide हुए? Okay, so why we have divided this integration? अगर मैं इसको डिवाइड नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैं ये केस है मेरा, इस केस में मेरे पास e की वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. Yes. e तो मेरा फिक्स नहीं है ना. व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी मींस दिस इज योर शेल, शेल का ये कोई बाउंड्री है एंड ये आपका इन्फिनिटी. यहाँ से आप मूव करते करते अंदर आ गए और हियर यू आर फाइंडिंग द vp. So when you are moving from here to here, the e vector is
something which is proportional to 1 upon r square. Yes. ठीक है, but at this, when you cross this boundary, e is 0. So there are two e value for throughout the line on which you are moving. So you cannot do the integration in one go. You have to do the integration for this part and for this part separately. Okay. इन दोनों पार्ट के लिए आपको इंटीग्रेशन सेपरेटली करना, क्योंकि ई की वैल्यू ही चेंज हो रही ना, डीएल का कोई रोल ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि डीएल दोनों केसेस में आप रेडियली इनवर्ड मूव कर रहे हो, तो डी आर यूनिट वेक्टर आप लिख सकते हो, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू राइट, बट ई इज चेंजिंग. अगर ई में फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता तो सिंगल इंटीग्रेशन में ही काम चल जाता. तो जब भी फंक्शन चेंज हो रहा है तो वी हैव टू डिवाइड इनटू टू पार्ट. So we have to do the integration into two part, and due to this division, the first part give me a constant value and the second part give me a 0 value. So within the shell, we don't have non-zero potential. We have a non-zero potential. It is not exactly 0, even though the electric field is 0. अगर इस equation को भी check करोगे कि E is minus gradient of V, so even if this is constant, अगर ये जीरो है तब तो मान लेते हैं कि 0 आ सकता है, कि उसका डिफरेंशियल 0 ही होगा. But even there is another function, if it is a constant function, then also the differential of that constant function will give me 0. यानी ये भी एक वैलिड हो सकता है कि ये 0 भी हो सकता है और ये नॉन 0 भी हो सकता है, but that should be constant. Both are capable of giving me E equal to 0. If this is this kind of relation between E and V. Yes. अगर E और V के बीच में रिलेशन ऐसा है तो दोनों पॉसिबिलिटी है. V 0 है तो E तो 0 रह गई, बट अगर V 0 नहीं है, कोई कांस्टेंट भी है और वो वेरी नहीं कर रहा है, तो उसका वेरिएशन निकालोगे विद डिस्टेंस, सो दैट विल बी 0 ओनली. एनी कांस्टेंट फंक्शन का वेरिएशन भी 0 ही देगा. मींस ग्रेडियंट इज नथिंग बट स्पेशियल वेरिएशन यू आर फाइंडिंग फॉर सर्टेन फैक्टर. तो स्पेशल वेरिएशन अगर किसी चीज में वेरी नहीं हो रहा है तो स्पेशल वेरिएशन की वैल्यू क्या हुई? 0 हुई. स्पेस के अंदर वो वेरी नहीं कर रहा, दैट इज 0. Yes. बट इट कैन बी कांस्टेंट. ओके, सो दिस इज इन अ सिंपल वे. अनदर वे जो हम पहले से कर रहे थे, जिसमें हम डीवी निकालते थे और डीवी की वैल्यू को फिर हम इंटीग्रेट करते थे, सेम सेंस में जाएंगे. वी हैव अ शेल and plus sign है हमारे पास, and this plus, and we are sitting somewhere here, point P, हम जहाँ पे VP निकाल रहे हैं, and we are coming from infinity, so we are coming to this point, and this is at a distance R. मैंने x लिया तो let us take x. अब ग्रिफिथ्स में भी क्वेश्चन है, let us take x, and this is your R, which is the radius of the shell. Okay, you consider a small area, patch of area on this shell, and this patch is at a distance r from P. हाँ बोलो सर, पहले वाले में और इसमें क्या अंतर है? पहले वाले में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉलेज से पोटेंशियल निकालना है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं पता है, हम डायरेक्ट पोटेंशियल निकाल रहे हैं, which is the usual follow up for any potential function. पहले केस में हमारा एम क्या था? हम देखो स्टार्टिंग से अगर चले तो पहले हमने फोर्स डिफाइन किया, फिर हमने उससे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया, और फिर उसको हमने जस्टिफाई किया कि कुछ ऐसा रियलिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. फोर्स तो बाद की चीज है, पहले फील्ड होता है, देन वी हैव अ फोर्स. सो वी हैव जस्टिफाइड दैट, एंड देन वी सेड कि electric field is quite difficult to find electric field for any certain system of charges, so we need to have a function which is called potential, because electric field have three components. It is a vector quantity and it will have three different components that is concerned with x, y and z. So what we can do, we can find only one function which is potential, and once you find the potential, then you can find the electric field. And once you know the electric field, you can find the force. तो हमारा
प्रोसीजर ये होना चाहिए कि हम पहले पोटेंशियल निकालें, पोटेंशियल निकालने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। इस केस में हम वही कर रहे हैं, पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे, देन वी विल ट्राई टू फाइंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। ठीक है, इज इट ओके? Yes. यस सर। ये भी जो क्वेश्चंस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, दैट इज मेथड ऑफ इमेजेस है, फिर उसके बाद कोई कंडक्टिंग स्फीयर है या कंडक्टिंग सिलेंडर है या कंडक्टिंग शीट है, वो ग्राउंडेड है, फिर एक चार्ज है, उसके बीच में क्या फोर्स होगा। All these things you can try, and in most of the cases we will find the potential and then we will try to find the force or electric field. ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि एक शेल है, the same thing is there, it is not a sphere or solid sphere नहीं है, शेल है। So dv will be equal to 4 pi epsilon naught, क्या होगा, dq divided by r। यही हमारा तरीका था, हमने रॉड के लिए भी यही किया था और एक शीट के लिए भी यही किया था हमने। dq is the whatever the charge within this small patch you have selected on the spherical shell, वो पैच पे जितने भी चार्जेस हैं, that is producing certain potential at point P when you have moved from infinity to that point P। रेफरेंस पॉइंट हमारा इन्फिनिटी है पहला, उसके बाद हमने P तक मूव किया, और ये मूवमेंट हम बहुत फास्ट नहीं कर रहे हैं, स्लोली स्लोली हम मूव कर रहे हैं। That is something how you have to move to find the potential. You don't run or don't means pass the path very fast. So that is slowly you are moving without any external force. So that is your potential. dq की वैल्यू, हाँ बोलो, dq बोलो सर वाई स्लोली? स्लोली बहुत रीजन है उसका, फास्ट करोगे तो कुछ और एनर्जी का चेंज आएगा आपको उसमें। आपको जब मूव कर रहे हो ना, एक्चुअली पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज समथिंग व्हिच इज व्हेन यू मूव समथिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट विद इन अ फील्ड, तो फील्ड में जब मोशन कर रहे हो ना, तो आप कुछ वर्क कर रहे हो। आप अभी हम वर्क अभी हम नहीं निकाल रहे हैं, बाद में हम निकालेंगे वर्क भी क्या होता है, किसी भी सिस्टम ऑफ मींस अरेंजमेंट के लिए क्या वर्क हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम वर्क कर रहे हैं, बट हम क्वांटिटी क्या निकाल रहे हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। मींस वंस यू रीच टू द पॉइंट P फ्रॉम इन्फिनिटी, यू हैव सर्टेन पोटेंशियल टू वर्क। आप जब इन्फिनिटी से यहाँ तक आए तो आपके पास कुछ पोटेंशियल गेन हुआ, means you have gained certain potential to do certain work. Is it clear? यस सर। बट ये जो आपने गेन किया है, ये गेन प्योरली जिस फील्ड में आप मूव कर रहे थे सिर्फ उसके कारण होना चाहिए। अगर आप कोई और चीजें चेंज करते हो, यानी बहुत फास्ट मूव करते हो, तो यू मे गेन और यू मे लूज समथिंग एल्स। तो हमें क्या करना है, यू हैव टू मूव इन द सेंस कि हमें कोई उठा करके धीरे धीरे विदाउट एनी वेलोसिटी चेंज, कोई अलग से फोर्स नहीं लगा रहा है, हमें बड़े ही कांस्टेंट वेलोसिटी, फोर्स भी छोड़ दो, कांस्टेंट, नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं कि हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करके यहाँ पे आ रहे हैं। वेलोसिटी बहुत फास्ट नहीं होनी चाहिए बट कांस्टेंट होनी चाहिए। फास्ट होगी तो दैट विल हैव सर्टेन मोर इम्प्लीकेशंस। उसकी एनर्जी जो आप अज्यूम करोगे ना कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज आया, तो जब फास्ट मोशन करोगे तो इट विल सर्टेनली चेंज सम अदर थिंग आल्सो। इसलिए हम कहते हैं स्लोली वी, जब भी लाइन देखोगे ना हमेशा लिखा होगा स्लोली वी मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, हैव यू, और विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, हैव यू हर्ड दिस लाइन? Yes, लिखा sir. रहता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये स्टेटमेंट लिखते ही नहीं है। सो आपको क्या करना है, उस फील्ड का सिर्फ आपको आउटकम देखना है, उसमें कोई और पैरामीटर ऐड नहीं करना है, अदरवाइज वर्क और एनर्जी में चेंज। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि हमें कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, बड़े स्लोली हम धीरे 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 करके, इवन अगर पॉजिटिव चार्ज को भी लाना है तो इट विल हैव एक्सपीरियंस, इट विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स। आपको धीरे धीरे उसको क्लोजली लेके आना है, कोई उस पर फोर्स नहीं लगाना है, आपको बहुत ही स्लो कांस्टेंट वेलोसिटी से आपको उस पॉइंट को इन्फिनिटी से इस पे लाना है।
इवन जब पॉजिटिव चार्ज तो चलो रिपल्शन होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इट विल बी अट्रैक्टिव, इट विल स्टार्ट मूविंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो आपको क्या रखना है, उसको भी स्लो लेके आना है, then only it will have certain potential due to that field only, not from the other factor। ठीक है, चलो अब डीक्यू लिख लेते हैं। जैसे बोलो। सर जैसे आप बोल रहे हो कि हमें रिपल्सिव और अट्रैक्शन के हाँ। उसके खिलाफ उसे हमें एक कांस्टेंट ही रखना है। तो सर वर्क डन तो तब करना पड़ेगा, तो उसके खिलाफ भी वर्क डन होगा ही। हाँ, तो सर yes। आप प्योर फील्ड की वजह से सर पोटेंशियल, देखो वर्क डन का फॉर्मूला याद है? यस सर, बी इनटू क्या फॉर्मूला है? एफ डॉट टी आर डी आर, या जो भी आपने डिस्टेंस किया उसमें कहीं पे आपके पास ये मेंशन्ड है कि यू नीड अ वेलोसिटी within any field if you experience certain force and you move from one point to other point। नेट डिस्टेंस की बात करते हैं, उसमें भी हमेशा देखोगे कोसाइन का फैक्टर आ जाता है। कोसाइन फैक्टर इसलिए इंट्रोड्यूस होता है क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है उसी डायरेक्शन के डिस्टेंस को अज्यूम किया जाता है ना। आप अगर फोर्स के डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हो तो वो जो डिस्टेंस आपने मूव किया है उसका कोसाइन फैक्टर आपको लेना पड़ता है, सो दैट यू फॉल इन द सेम लाइन अलोंग द फोर्स। क्लियर? अब अगर मैं एफ डॉट डी एस निकालना चाहता हूँ किसी भी फील्ड के कारण, कोई फोर्स फील्ड कह देते हैं इसको, एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो फोर्स फील्ड, मींस इफ यू हैव अ फील्ड यू कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। कोई पॉजिटिव लेके आता तो फोर्स फील होगा, नेगेटिव लोगे तो डिफरेंट फोर्स फील होगा। ये जो एफ डॉट डी एस है ना, इस एफ में कोई और फैक्टर ना ऐड हो, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट यू हैव टू डू इन अ वेरी स्लो मैनर। भी इस एफ डॉट डी एस में सिर्फ एफ डॉट डी एस ही होना चाहिए जो डिस्टेंस आपने कवर किया, और जो फोर्स यानी दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट हैज टू बी वर्कड आउट हियर। इसमें कोई दूसरा आपके मोशन के कारण आपका कोई एनर्जी का चेंज नहीं होना चाहिए। कहीं आप फास्ट मूव कर रहे हो तो उसके कारण दूसरी चीजें हो सकती हैं। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज फास्ट मूव कर रहा है तो इट कैन एमिट रेडिएशन, इट कैन लूज द एनर्जी व्हिच हैज गेन्ड ड्यू टू द पोटेंशियल, मींस ड्यू टू whatever the position it has changed, उसने कुछ एनर्जी गेन की है, it can lose when it is moving very fast, रेडिएटिव लॉस कर सकता है वो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो पोटेंशियल निकाल रहे हो ना, उस पोटेंशियल में दूसरा फैक्टर ना इंक्लूड हो जाए। तो यू हैव टू डू द प्रोसेस इन अ वेरी स्लो मैनर। ओके सर, गॉट इट। बाकी इफेक्ट को आपको नेगेट करना है, एग्जैक्टली जीरो तो नहीं कर सकते हो, बाकी इफेक्ट को आपको नेगेट करना है। इवन हम ऐसा भी अज्यूम करते हैं, एक लाइन शायद मैंने पहले बोली हो, मे बी भूल गए हो, कि व्हेन यू आर ब्रिंगिंग चार्ज close to any other charges, so the charge which you are bringing from infinity to some point, it should not affect the arrangement of other charges। कई बार ऐसा होता है कि वो चार्ज जो हम लेके आ रहे हैं वो उस अरेंजमेंट को इफेक्ट कर देता है, तो फोर्स विल चेंज। तो एक हम कंडीशन लेके चलते हैं इन सारे केसेस में, अज्यूम करते हैं कि हमारा जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं ना फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट, दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज वेरी स्मॉल वैल्यू। वैसे तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट इज वेरी बिग वैल्यू, 1 कूलम, बट दैट शुड बी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अदर चार्जेस। ये सारे फैक्टर को हमें लेके चलना है, अदरवाइज उसकी प्रेजेंस से दूसरे का ओरिएंटेशन चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा, एंड इट विल जनरेट अ डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो आपने सोचा कि इतना पोटेंशियल मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मोशन शुड बी वेरी स्लो, steady, then only you will see the effect of these fields only। नहीं तो कुछ ना कुछ अलग से कंपोनेंट इंक्लूड हो जाएंगे जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। when you measure the VP, और जब VP कैसे, हम VP ऐसे मेजर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, once you bring the charges from infinity to that point, आप कैसे चेक करते हो कि इसके पास कुछ पोटेंशियल है या नहीं है? चेक करने का क्या तरीका है? हम कैसे कहते हैं कि हमने चेक कर लिया कि हाँ इसने कुछ गेन किया है, कुछ पोटेंशियल?
बताओ, चेक करने का क्या तरीका है? अगर कहीं किसी पार्टिकल को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और वी पॉइंट पे हम लेके आ गए, how we will check it has gained certain potential, means it has capability of doing certain work, maybe positive, maybe negative, that is the other case, but it has certain potential. ग्रेविटेशन पढ़ा है ना? टीचर बड़े सिंपल से चीज समझाते हैं। किसी ने माइक ऑन कर रखा है, माइक म्यूट कर लो। वो क्लास में जब पढ़ाते होंगे चौक उठाते होंगे टेबल से, ऐसे ऊपर लेके जाते होंगे और फिर उसे छोड़ देते होंगे, वो गिर जाता होगा, वो टूट जाता होगा। ऐसे ही पढ़ाया, कितने क्लास में ऐसे पढ़ाया गया है? ये एग्जाम्पल किसी ने दिया, किसी क्लास टीचर ने? यस सर, सभी ने चौक की जगह मार्कर था। हाँ? चौक की जगह मार्कर था। अच्छा, मार्कर होता था। चलो टूटता है। तो थोड़ा सा टीचर्स हैव इवॉल्व्ड कि भाई ऐसे करने से चौक टूट जाता है, तो थोड़ा सा इवॉल्व होकर के दे यूज्ड सर्टेन अदर थिंग। कई बार डस्टर भी यूज करते हैं। और तो क्या हुआ, व्हेन यू चेंज द पोजीशन और व्हेन यू लीव इट ऑन इट्स ओन, उसको छोड़ दो, अगर वो वहां से मोशन करता है then we can say that it has gained certain potential. अगर वो वहां से मोशन नहीं करता है तो it has not gained any potential. भाई जब आपने चार्ज पॉजिटिव को लेकर के यहाँ तक आए थे, तो आपने उसे किसी तरीके से होल्ड किया या whatever, you are bringing that to point P, and then you when leave that charge on its own, it will move from that position. या तो outward move करेगा या इनवर्ट टुवर्ड्स द रेडियस मीन सेंटर, या रेडियली आउटवर्ड मूव करेगा। जब भी वो मूव कर रहा है, इट मींस इट हैज गेन्ड सर्टेन पोटेंशियल एंड दैट पोटेंशियल इज मेकिंग हिम और मेकिंग इट दैट चार्ज टू वर्क। अगर वो मोशन नहीं करता है तो इट हैज नॉट गेन्ड एनी पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत ज्यादा इन्फिनिटी पॉइंट पे जाओ, उस चार्ज को थोड़ा सा वहीं पे मूव करके छोड़ के देखो, वो कुछ नहीं करेगा। मतलब I am talking something which is plus infinity and a little bit less than infinity. So that charge will not do anything because it has not gained any potential. तो चेक करने का यही तरीका है, लेके आओ, उसे फ्री छोड़ दो। अगर वो कुछ काम करने लग जाए, it means it has gained something. जब बच्चा ग्रेजुएशन में पढ़ने के बाद 3 साल किसी फैक्ट्री या किसी जॉब या किसी भी प्रोफाइल में काम करेगा एंड वो कुछ नहीं करता है, उसे जॉब मिल जाती है, जाता है ऑफिस में बैठ जाता है, कुछ नहीं करता है, तो उसने पिछले 3 साल में कुछ भी गेन नहीं किया। और कुछ काम करके दिखाता है तो इट मींस पीपल विल से यस, पिछले 3 साल में इसने कुछ काम किया है तो कुछ करके दिखा रहा है। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। इसलिए कुछ गेन करोगे ग्रेजुएशन में तो अपने वर्क प्लेस पे कुछ करके दिखाओगे। और अगर इस 3 साल में कुछ नहीं गेन किया फ्रॉम इन्फिनिटी टू this whatever the distance, you can imagine the distance in terms of time. वैसे इंडिया एक ऐसा कंट्री जहाँ पे डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ मेजर होता है। यस सर, 15 साल में। नहीं 12 से 3 ग्रेजुएशन की डिस्टेंस यहाँ ऐसे बोलते ना, चलो बस 20 मिनट पहुंच जाऊंगा मैं। कोई किलोमीटर में नहीं बात करते यहाँ पे, बस 1 घंटा यस सर, पहुंच जाएंगे। वो भी गलत बताते हैं सर, वो भी। सर मगर ये तो इसलिए है ना कि हमें टाइम से ज्यादा मतलब है। अब हमें क्या मतलब कि 20 किलोमीटर दूर है, हमें तो ये मतलब है ना कितनी देर में आ रहे हो। बट एज पर मींस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि मैं कितना दूर हूँ, तो दूर भी बंदा बोलता है मैं 20 मिनट दूर हूँ, मतलब हाउ कैन ही बी 20 मिनट्स अवे। फिजिक्स के जो दज्जिया उदाहरण है सर, नहीं सर, दज्जिया उदाहरण
वो हमने ऐसा, गूगल ने भी वही हेल्प कर दिया। गूगल पे भी आप जाते हो, टाइम पे क्लिक करते हो, उस पे अपना बहुत जो डिस्टेंस वो लिखता है ना, लिखता है वो टाइम डिस्टेंस भी बताता है कि इतना किलोमीटर है, बट वो छोटा सा बताएगा, मेन इंपॉर्टेंट बताएगा 2 hours 30 minutes। तो यहाँ पे भी गूगल ने भी अपने जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया है इंडिया के लिए इस हिसाब से किया है कि भाई इसको टाइम से मतलब है, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। है ना, कि टाइम कम लगे बस वो दिखाना है। डिस्टेंस चाहे जितना भी हो, उसमें पेट्रोल कितना भी खर्च हो जाए, बेशक से वो 20 मिनट ऊपर चलेगा तो पेट्रोल थोड़ा सा बचाएगा या कम करेगा, वॉट एवर, बट वो कोई नहीं, टाइम इंपॉर्टेंट है। चलो बैक टू दिस वन। dq is sigma is again the surface charge density, multiply with that small patch area, that is dA, that will be your dq, and r, which is related to x and capital R, very easily you can write using cosine formula, which is x square r square minus 2 rx cos of theta and root of this one. What about this one? ये थोड़ा सा मुझे बताओ। and use spherical polar coordinate form. How we can write this dA? dA की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर sin theta d theta and d phi. Very good. ये एक्चुअली जो ये वाला टर्म है ना, this one, this is nothing but, sorry मैं सिग्मा भी लिख देता हूँ, this is your this one d omega. d omega क्या होता है? घन कोण, एंगल, घन कोण, solid angle. Normally it is in r unit vector, क्योंकि एरिया ना, तो एरिया आउटवर्ड होगा, that will be in r unit vector. सर ये स्टेप रिपीट करना। This term is solid angle. जैसे हमारा एंगल होता है ना थीटा, और ये आर्क है, आर्क के लेंथ और थीटा का रिलेशन है, उसी तरीके से हमारे पास सॉलिड एंगल इज समथिंग लाइक which is making a area. So we have dA and this r, this is your r and this is your r. So this angle is called as, this is theta, this is normally called as, let us write d theta. So this is d theta, this term, and this will be d omega. ठीक है, तो ये कॉनिकल ओपनिंग है, और कॉनिकल ओपनिंग विल मेक एरिया। अगर सिंपल लेटरल मींस प्लेन में ओपनिंग है तो दैट विल मेक अ आर्क, और आर्क लेंथ और रेडियस और थीटा का बड़ा यूनिक रिलेशन है, दैट इज वेरी सिंपल रिलेशन, थीटा बाय 360 करके करते हैं, या डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। एंड इन दिस केस वी हैव एरिया, क्योंकि क्या करेगा जब 3 डायमेंशनल एंगल होगा तो दैट विल मेक एरिया एट द ओपनिंग। वो एंड एरिया का एंड जब करोगे आप देखोगे एरिया, तो वो एरिया और जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट एंगल इज नॉट अ सिंपल प्लेनर एंगल, इट इज अ सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल, एंड इट इज अ रेडियस। तो ये फॉर्मूला हम नॉर्मली सॉलिड एंगल के लिए लिखते हैं, दिस वन। एंड टोटल सॉलिड एंगल व्हेन यू डू द ओपनिंग थ्रू आउट द थीटा एंड थ्रू आउट द फाई, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? अगर एक कोन है, कोन को आप बिल्कुल बंद कोन है, उसको स्टार्ट करो, उसको बड़ा करते हो तो कितना बड़ा बनेगा वो? दैट विल मेक अ स्फीयर। सो तो टोटल एंगल क्या बनेगा? टोटल ओपनिंग टोटल एंगल क्या बनेगा अगर सारे जगह देख लो तो? 2 पाई। सर 2 d पाई phi लैम्डा क्या है? एंड, हाँ d phi क्या है? देखो ये 2 पार्ट में है एक्चुअली। क्या है ना, दिस ओपनिंग, अगर आप यहाँ पे, मेरे पास कोई एनिमेशन नहीं है, बट एनिमेशन इफ यू वांट टू मेक, यू मेक एनिमेशन कि आप क्या ये डिग्रीज इन x एंड y एक्सिस है? नो 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 x y प्लेन और z प्लेन? नहीं, एक्स वाई जेड में ही है, बट वी आर नॉट राइटिंग इन एक्स वाई जेड फॉर्म। हम जैसे कोई पॉइंट है, से दिस इज द पॉइंट एग्जांपल के लिए, व्हिच इज एट अ r डिस्टेंस, दिस पॉइंट विल हैव x y and z। इसके जो x y z कोऑर्डिनेट है वो ये है, बट इसको हम, इस पॉइंट को हम r
थीटा एंड फाई के फॉर्म में भी कर सकते हैं। यानी इसका एक हम पहले यहाँ पे ड्रॉप करते हैं अपने एक्स वाई, मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो कितने एंगल पे जेड से रिलेटेड है। फिर उसके बाद ये जब हमने ड्रॉप किया एक्स वाई प्लेन में, तो इसका एक यहाँ पे एंगल बना, तो ये एंगल कितना है, या तो एक्स से होता है, नॉर्मली हम एक्स से लेते हैं। ये दोनों एंगल जो आपके पास है ना, ये एंगल यहाँ पे पिक्चर में आ जाते हैं। तो ये एंगल आपका नॉर्मली जो थीटा जा रहा है, थीटा विल गो इन होल ऑफ दिस वन, दैट इज विद इन अ प्लेन, इट विल बी पाई, मींस थीटा की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मली 0 to पाई जाती है। जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं, जो फाई की वैल्यू है दैट विल बी गोइंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, ये लिमिट होती है थीटा के लिए, फाई। तो आप एक तरह से सर्कल ओपन कर रहे हो, और सर्कल को ओपन करने के बाद आप उसे जब वर्टिकली रोटेट भी करोगे तो इट विल मेक अ स्फीयर। तो आपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा है जिसमें dx की वैल्यू डी सर पढ़ रखा है फर्स्ट सेमेस्टर में, एमपी में पढ़ा था। उसमें फिर dl की वैल्यू, फिर इवन अभी डेल्टा भी निकालेंगे। अब ये सारी चीजें निकालनी है हमें याद होना चाहिए, वी हैव टू यूटिलाइज दीज थिंग्स। अब हम इस पे ही फोकस करेंगे। हाँ, साइन थीटा क्यों? अब आप एक्स वाई जेड को लिखो, कैसे लिखोगे आप? जो ये एक्स वाई जेड लिख रहे हो ना, इसको आर के टर्म्स में लिखो सारी वैल्यू को। देखो क्या बनेगा। मैंने डायग्राम हल्का सा हिंट दे दिया आपको, और आपको ये वेक्टर का भी ध्यान रखना पड़ेगा कितना है, फिर उसमें x की वैल्यू कितने इसके इक्वल है, r के इक्वल, फिर y की वैल्यू कितने इक्वल में। x आपको क्या करना है, x की वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू लिखनी है, z की वैल्यू लिखनी इन टर्म्स ऑफ r साइन थीटा कॉस फाई समथिंग आता है, फिर r साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा आता है, साइन फाई, सॉरी कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, एंड r यहाँ पे आएगा साइन थीटा। सर इसको जैकोबियन ट्रांसफॉर्म से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना? जैकोबियन से कर सकते हो, बट बेटर कि आप एक बार दोबारा अपना वेक्टर वाला यूनिट खोलो, वहां पे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक तो पहला जो सबसे बेसिक है दैट इज पोलर। पोलर आपका प्लेन में होता है, जब आपका सिर्फ प्लेन होता है ना, उसमें आपका आर होता है, यानी आर एक्चुअली हम कुछ नहीं कह रहे, जो हमारा पॉइंट है वो एक्स और वाई से बना हुआ है, बट उसकी एक जो डिस्टेंस हम रेडियल डिस्टेंस जिसको डिफाइन करते हैं उसको मार कह देते हैं, एंड वी मेक अ न्यू यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग आर यूनिट वेक्टर, और उसका जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम थीटा यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे हमारा एक्स और वाई है ना, तो उसी तरीके से हम इसको पोलर सिस्टम कहते हैं। पोलर सिस्टम में हमारा यूनिट वेक्टर चेंज होता है आर और थीटा के टर्म्स में, यानी सब कुछ हम लिखते हैं आर यूनिट वेक्टर और थीटा यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, यानी व्हेन यू आर मूविंग रेडियली and when you are moving tangentially to that particular radius। तो आपको कैसा दिखेगा सारा सिस्टम, उसी तरीके से हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म आ जाता है, जिसमें आप 3 डायमेंशनल में चले जाते हो, जिसमें एक z एक्सिस भी आ जाता है। इनिशियल जो आपका होता है ना वैल्यू और साइन थीटा कॉस थीटा लाओ, उसी तरीके से बिहेव करेगा, बट एक z एक्सिस आने से एक और थीटा का फैक्टर आता है विच इज नॉर्मली कॉल्ड एज फाई। और फिर एक और सिस्टम होता है जो आपने पढ़ा होगा, दैट इज सिलेंड्रिकल। ये भी पढ़ा है? Yes, sir. R theta z वाला। तीनों सिस्टम में कन्वर्जन ध्यान से पढ़ना, यानी x y z कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, dx को कैसे लिखेंगे, dy को कैसे लिखेंगे, dz को कैसे लिखेंगे, कोई लेंथ है dr यानी एलिमेंटल लेंथ को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। फिर एरिया को कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम, जब तक 2 डायमेंशन में तो एरिया लिख सकते हैं, जब एक बार 3 डायमेंशन में जाएंगे तो वॉल्यूम भी एक टर्म आ जाएगा, यानी वॉल्यूम विल बी dx dy एंड dz। तो dx dy dz की वैल्यू r थीटा के फाई टर्म में क्या होगा। तो ये सारी चीजें आप याद कर लेना एक बार जा करके, आज इस पे हम डिटेल में नहीं डिस्कशन करेंगे, वी आर जस्ट यूजिंग दैट अज्यूमिंग कि आप लोग को पता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे। अब जब हमने dq भी लिख दिया, r भी लिख दिया, और dv हमें पता ही था क्या था कि dv की वैल्यू ये है, तो दोनों को इसमें पुट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, मतलब डी डिफरेंशियल वेरिएबल 2 हैं, d थीटा एंड d फाई, तो वी हैव डबल इंटीग्रेंट, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, पहले तो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, इवन आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर को भी बाहर ले सकते हो। एंड वी आर हैविंग टू डिफरेंट डिफरेंशियल फॉर्म। एक थीटा है, थीटा 0 to पाई जाता है, फाई 0 to 2 पाई जाता है, ठीक है। और बचा क्या ऊपर, साइन थीटा डी थीटा डी फाई डिवाइडेड बाय, बिकॉज नीचे हमारा x है, x इज एंड थीटा दे आर, मींस x भी चेंज नहीं हो रहा, बट थीटा यहाँ पे एक वेरिएबल हमारे पास इंट्रोड्यूस है जो पूरे के पूरे रूट के अंदर है, तो वी कैन नॉट टेक इट आउट। दैट इज प्रोपोर्शनल, मींस दैट इज हैविंग अ वेरिएबल व्हिच इज चेंजिंग, सॉरी माइनस 2rx cos of थीटा। अब इस इंटीग्रेशन का आंसर आता है या सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है। rx की वैल्यू या 2rx cos थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, और ऊपर देखोगे तो आपका साइन थीटा डी थीटा उससे रिप्लेस हो सकता है इजिली। फाई का नीचे कोई वेरिएशन नहीं है, तो वी कैन इजिली पुल आउट दिस इंटीग्रेंट सिंबल एंड फाई सेपरेटली। बाकी सारा थीटा का वेरिएशन है, तो फाई वाला भी टर्म हमारा इंटीग्रेट होकर के इजिली हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 2 पाई। 2 पाई क्यों आ रहा है, मैंने इस वाले इसको अलग से कर लिया क्योंकि फाई का कोई अलग से हमारे पास वेरिएशन नहीं है। बाकी बच गया ये, इसको जरा इंटीग्रेट करो, मींस दिस इज साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय दिस रूट टर्म। यहाँ तो हो गया सिग्मा, नीचे आर स्क्वायर ऊपर है और नीचे आपका 2 पाई है, तो पाई पाई कैंसिल एंड दिस इज 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, करके देख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। rx cos थीटा को सर एक मिनट, should I write Yes, sir. 1 by rx and root of r plus x minus mod r minus x। सेम वही फैक्टर आ जाएगा, है ना? मैंने तो पूरा नीचे वाला डिनोमिनेटर को टी लेट करके ऊपर वाला आ जाता है, तो इजी हो गया। मे बी हो सकता है, क्योंकि दोनों प्रोसीजर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यू व्हेन यू पुट पाई एंड 0 पाई cos पाई क्या होता है, माइनस, -1 so that will become plus 2rx, और जब 0 डालोगे तो इट विल बी +1, so it will be minus rx। तो दो टर्म आपके आ जाएंगे, that is sigma r square 2 epsilon naught, you have two terms,
RX भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं चाहे तो साइड में, जिसको मैंने बाहर पुल आउट कर लिया. दिस इज रूट ऑफ R square plus X square plus 2RX and minus root of R square plus X square minus minus 2R 2RX. बस. ठीक है. अब ये यहाँ पे भी रुक सकते हो, बट थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है. that you have to write the potential function for both the case, means R greater than X and X is means what we have to, X is means inside the shell and outside the shell. X लिया था ना, हाँ, X is greater than R and X is less than R. तो दोनों केसेस के लिए आपको लिखना है. ये जो ऊपर वाला हमने फंक्शन लिखा है that is quite valid, और you can always write, इसको हम लिख सकते हैं एक और टर्म में. इसको हम मेरे पास पेज यहाँ खत्म हो रहा है. सर x ग्रेटर देन r के लिए सिग्मा r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट x और x इसको हम ये लिख सकते हैं ना, यस है ना, इस टर्म को, और ये रूट हट जाएगा तो ये भी हट जाएगा. So this we can write as this. When we write this one, we have to be careful. ये दो, इसके दो possible roots हैं. R minus x whole square भी possible है, उसका रूट करोगे तो ये हट जाएगा, और it can be x minus r also. दोनों का तो आंसर सेम ही आएगा ना. इसको अगर एक्सपैंड करोगे, स्क्वायर करोगे, तो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2RX आ जाएगा. जब इसको एक्सपैंड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2RX. दोनों इसके पॉसिबल वो है, बट वी हैव टू कंसिडर, जब ये दोनों इसके पॉसिबल रूट है ना, जिसमें कि पॉजिटिव नंबर, यानी रूट का हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जो रूट वैल्यू हो ये किसी पॉजिटिव नंबर का ही है ना. नेगेटिव नंबर का रूट तो अच्छा नहीं लगता ना. ये होता है नेगेटिव नंबर का रूट. स्क्वायर कर देते हैं ना, उसको हम अलग चैप्टर में डाल देते हैं, हम नॉर्मल तरीके से नहीं ट्रीट करते. यस सर. हाँ, क्या करते हैं? नॉर्मल तरीके से ट्रीट करते हैं. Complex. उसको हम आराम से सोते हुए समझते हैं कि जब नींद आएगी ना, इमेजिनेशन में जाएंगे तब हम उसे यूज करेंगे. Imaginary numbers, but imaginary numbers are not non-real, they are real numbers. चलो, real numbers are subset of imaginary numbers. तो -1 की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी हम अवॉइड करेंगे -1 की पॉसिबिलिटी. सर सबसे बड़ा सबसेट किस नंबर का होता है? सबसे बड़ा सबसेट, सबसे बड़ा सबसे समझा नहीं मैं. तो बोले सबसे बड़ा अच्छा, सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है. सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आ जाता है. फ्रैक्शन हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे कुछ भी हो. रियल नंबर भी आते हैं. यस, रियल नंबर वो नंबर है कॉम्प्लेक्स सबसेट के जिनमें इमेजिनरी टर्म्स आपके 0 हैं. जैसे लिखते हैं किसी नंबर को a plus iota b, तो जिसमें b 0 है, दे आर रियल नंबर्स. बट ऑल आर द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर इज बिगर सेट. ठीक है, तो अभी हमें उससे कंफ्यूज नहीं करना है, हमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है, हमें सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है, क्योंकि मैं दूसरे पेज में ले नहीं जाना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर को. तो फर्स्ट केस में कोई दिक्कत नहीं, वी ओनली हैव वन पॉसिबिलिटी r plus x. बट सेकेंड केस में वी हैव टू पॉसिबिलिटीज. So we will write the potential function when we are writing for x greater than r, then use this term for the first minus this term for x greater than r. And when you are writing for any potential function which is x less than r, then you have to use this as the first term with minus sign and this as the second term, so that you get the positive root for both the cases. Is it clear? यानी दो इक्वेशन आपको लिखने पड़ेंगे,
पहले इक्वेशन में रेड वाला ये वाला टर्म आ गया माइनस दिस टर्म फॉर एक्स ग्रेटर देन आर, और x लेस देन आर के लिए आपको पहला टर्म तो वही रहेगा, दूसरा टर्म आपका r माइनस एक्स आ जाएगा। फिर r माइनस एक्स r प्लस एक्स को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो एक में 2x आएगा, एक में 2r आ रहेगा। तो 2r वाला नीचे एक r से कैंसिल हो जाएगा, 2x वाला किसी और से कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार चेक करना कि डज वी गेट एज वी गेट फॉर द प्रीवियस केस, वही आता है डिफरेंट? सर हाँ बोलो। सर अंडर रूट वाला ही ठीक है सर एक्सप्रेशन। नहीं अंडर रूट तक तो छोड़ोगे, लेकिन उसके आगे लिखना पड़ेगा ना आपको। अंडर रूट हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, दिस इज सिंपल पॉलिनोमियल, तो इसको तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। यहीं पे छोड़ दोगे तो टीचर एक नंबर तो काट ही लेगा, बोलेगा ये बच्चा थोड़ा डरता है पॉलिनोमियल से। जब मोदी जी याद कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आप लोग तो याद ही कर सकते हो। When he can relate this to Canada, then you are a physicist student, तो आप तो कहाँ रिलेट कर सकते हो। जब वो कनाडा को जोड़ देते हैं इसमें, जिन्होंने पता नहीं डिग्री के कौन कौन सी की हुई है अभी तक। सर कनाडा या फ्रांस? नहीं कनाडा के लिए बोला था, फ्रांस के लिए नहीं बोला था। मेरे ख्याल से कनाडा के लिए बोला था। ये फ्रांस अब कहाँ से आ गया? इसके लिए तो दूसरा फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब का लगाना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है फ्रांस के लिए बोला था, हो सकता है कंफ्यूजन। नहीं कनाडा के लिए बोला था। अरे सर